Good morning, my dear friends and my dear students. This lecture is due from second year students, and chapter is enzyme, and subject is biochemistry and clinical pathology. I am Chandramohan Singh, and for the more lecture, please connect my channel Super Pharmacy. And this is the enzyme structure and diagram figure, and this is the first lecture of enzyme. Let we see what topic we covered. First of all, definition and properties. So let's start our videos lecture. I request for please subscribe channels and share and like and comment. So let's start. हिस्ट्री, वैसे आपके टॉपिक में हिस्ट्री है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं. फ्रेंच केमिस्ट एंसेल्मे पेन was the primary to get associated in nursing protein diastase in 1833. एशेल्मे पेन जो है सबसे पहले प्रोटीन की नर्सिंग करते टाइम, मतलब प्रोटीन बनाते टाइम डायस्टेज एंजाइम को 1833 में खोज किया था. A few decades later, one learning the fermentation of sugar to alcohol by yeast, Louis Pasteur concluded that this fermentation was the caused by the vital force contained with the yeast cell and referred to the ferments that were thought to operate slowly at the interval living organism. लुइस पोस्टर ने बताया था कि शुगर से अल्कोहल जब बनाया गया तो उसमें ईस्ट का प्रेजेंटेशन देखा गया. तो ईस्ट का प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा कि बहुत फोर्सफुली कंटेंट, ईस्ट जो है फोर्सफुली कंटेंट है अल्कोहल बनाने में इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको फर्मेंट्स के नाम से रेफर किया था. नेक्स्ट 1877 द जर्मन लाइफ साइंटिस्ट वेलम को ने 1837 से 1900 तक इनिशियली द टर्म प्रोटीन विच कम्स फ्रॉम ग्रीक leavened are in the east to describe this process. 1877 में जर्मन साइंटिस्ट वेलन कोनेल जो 1837 से 1900 तक इनिशियली यूज्ड द टर्म प्रोटीन विच कम्स फ्रॉम, उन्होंने प्रोटीन का जो टर्म दिया था ग्रीक वर्ड आपका प्रोटीन जो है लिवेंड आर इन द ईस्ट, उन्होंने जो प्रोटीन से आया था यानी लिवेंड आर इन द ईस्ट से डिस्क्राइब किया गया दिस प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस को. The word protein was later to talk to dead substrate like enzyme. Therefore, the word
ferment was accustomed tagged to the chemical activity created by the living organism. Edward Buckner submitted his first paper on the study yeast extract. 1897, he found that sugar was fermented by yeast extract even when there were no living yeast cell in the mixture. He named the enzyme that brought about the fermentation of the source zyme. In 1907, he received the Nobel Prize in the chemistry for his discovery of the cell-free fermentation. Following Buckner's examples, enzymes are usually named according to the reaction they carry out. The suffix "-asc" is combined with the name of substrate. Lactase is the enzyme that cleaves the lactose. Are to the two types of reaction DNA polymerase from DNA polymers. यानी कि एडवर्ड बकनर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके एंजाइम के स्टडी पर, और उन्होंने ही बताया था लास्ट में एज जो लगता है एंजाइम के सबस्ट्रैक्ट जो होते हैं उसी के लास्ट में ASC लगा दिया जाता है, उस एंजाइम का नाम हो जाता है एंजाइम. The enzyme can be defined as the biological polymers that catalyze the biological reaction. एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल पॉलीमर्स है जो क्या करता है? एंजाइम कैटलाइज करता है बायोलॉजिकल रिएक्शन को. यानी कि लिविंग थिंग्स में जो भी सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें एंजाइम जो होता है एज ए कैटलिस्ट काम करता है. यानी आपके रिएक्शन कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को स्पीड अप कर दे या स्लो कर दे. तो एंजाइम का क्या काम करता है? एक्सेलरेट करता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है. The initial stage of the metabolic process depend upon the enzymes which react with the molecules and is called substrate. सबसे पहले स्टेज आपका क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस जो डिपेंड अपॉन द एंजाइम. जो मेटाबॉलिक प्रोसेस एंजाइम पर डिपेंड होता है उसका इनिशियल स्टेज क्या होता है? तो एंजाइम क्या करता है? सब्सट्रैक्ट के साथ जुड़ता है. एंजाइम जिसके साथ जुड़ता है उसको हम सब्सट्रैक्ट कहते हैं. तो आपका मैकेनिज्म जो प्रोसेस है आगे आप लोग पढ़ेंगे भी, तो मैं बताऊंगा इसमें अगले लेक्चर में एंजाइम का मैकेनिज्म. तो उसमें क्या मैकेनिज्म है? जो एंजाइम जो है सब्सट्रैक्ट के साथ मिल करके एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है. फिर उसी टाइम एंजाइम जो है सब्सट्रैक्ट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है. बाद में एंजाइम सेम बिना रिएक्शन को बिना खुद को अल्टर किए हुए, मतलब उसी कंडीशन में एंजाइम जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में वापस आ जाता है और आपका प्रोडक्ट जो होता है वो बन जाता है. Enzyme converted the substrate into the other distinct molecule which are known as product. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एंजाइम जब सब्सट्रैक्ट को अलग मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है उसको हम प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं. एंजाइम आर द बायो मॉलिक्यूल्स दैट आर हाईली स्पेसिफिक. एंजाइम जो होता है बायोमोलिक्यूल्स होता है जो हाईली स्पेसिफिक होता है. All metabolic process in our body need enzymes to catalyze reaction at the faster rate. हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें एंजाइम की ज़रूरत होती है और एंजाइम क्या करता है? रिएक्शन को कैटलाइज करके उसको कैटलाइज होने से उस रिएक्शन का फास्टर रेट हो जाता है. Enzyme speed up the reaction rate by the reducing the transition time between the substrate and product. जो हमारे एंजाइम के बिना जो रिएक्शंस हो रहे हैं, सपोज डेट
जो टाइम लग रहा है, अगर 4 घंटे लग रहा है तो एंजाइम के आने में, सपोज एज एग्जाम्पल मैंने दे रहा हूँ, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि कितना टाइम लग रहा है, बट एक सपोज, तो वो रिएक्शन जो है वो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा एंजाइम के आते ही, एंजाइम के प्रेजेंस में होते ही वो रिएक्शन बहुत कम टाइम में हो जाएगा। अब प्रोडक्टिविटी आ जाएगी आपकी। एंजाइम्स ओनली टेक पार्ट इन द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम और अल्टरिंग द इक्विलिब्रियम रेट। इक्विलिब्रियम रेट को बिना डिस्टर्ब किए एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, इन लिविंग सेल्स के केमिकल्स रिएक्शन में रोल अदा करता है। एंजाइम्स influence or initiate the biological reaction by the lowering the activation energy and increase the transition energy of the substrate in the product. Enzyme influence या initiate the biological reaction. एंजाइम क्या करता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा या इनिशिएट करेगा बाय द लोअरिंग एक्टिवेशन, बहुत कम ही एक्टिवेशन में, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी में, और इंक्रीज ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ द सब्सट्रैक्ट इनटू प्रोडक्ट, और उसको क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट और प्रोडक्ट में चेंज करेगा। स्ट्रक्चर है आपका एंजाइम और सब्सट्रैक्ट का। जो इसमें ऑरेंज पार्ट है वो एंजाइम्स है, एंड ए जो आपका ब्लू पार्ट है वो सब्सट्रैक्ट है। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सम एंजाइम। एंजाइम के हम जनरल प्रॉपर्टी देखते हैं कि जनरली प्रॉपर्टी क्या है एंजाइम की। द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम इंक्लूड फॉलोइंग कैरेक्टर। एंजाइम इनिशिएट द एक्सेलरेट द रिएक्शन। एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। एंजाइम एक्टिविटी ऑफ एन द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज पीएच स्पेसिफिक, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो पीएच पर डिपेंड करती है। पीएच की मीडियम में एंजाइम अपना, उस मीडियम के हिसाब से अपना एक्टिविटी ऑप्टिमम शो करता है। एंजाइम कैन कैटलाइज रिएक्शन इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स मैनर बट डू नॉट डिसाइडेड द डायरेक्शन ऑफ द बायोकेमिकल पाथवे। यानी एंजाइम जो होता है अपने रिएक्शन को फॉरवर्ड और रिवर्स, मतलब आगे और पीछे के मैनर में करता है, बट वो क्या करता है, वो एंजाइम की किसी बायोकेमिकल पाथवे के एंजाइम रिएक्शन को डिसाइड नहीं करता है, डायरेक्शन नहीं देता है। एनी एंजाइम possesses a specialized region, active site, to which substrate is especially interact with the form desired product। आगे आप लोगों को बताऊंगा मैं जब एंजाइम के मैकेनिज्म में, तो उसमें एंजाइम के पास क्या होता है, एक्टिव साइट होता है। एक्टिव साइट पर ही सब्सट्रैक्ट जा करके जुड़ते हैं और उसको प्रोडक्ट के रूप में चेंज होते हैं। अंडर द हाई हीट टेम्परेचर एंड वेरिंग पीएच एंड एंजाइम मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल। अगर एंजाइम के सूटेबल या एंजाइम के एटमॉस्फेयर के हिसाब से पीएच ना रहे और टेम्परेचर ना रहे तो वो क्या होता है, डीनेचर हो जाता है या अनस्टेबल होता है, एंजाइम की वर्किंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए अब एंजाइम जो वर्क करता है वो फेवरेबल टेम्परेचर और फेवरेबल पीएच पर करता है। एंजाइम्स आर द प्रोटेनियस पोजेशनिंग प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक टू प्रोटीन। तो एंजाइम जो होता है प्रोटीन का बना होता है। मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के नहीं बने होते, लेकिन मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू bring catalyzed of the substrate
यानी कि सब्सट्रैक्ट से कैटलाइज्ड करने के लिए स्मॉल अमाउंट एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। कम अमाउंट में भी एंजाइम जो होता है वो सब्सट्रैक्ट से कट्रैक्ट हो करके कैटलाइज करके उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। एंजाइम्स एक्टिविटीज typically show absolute relative ग्रुप एंड स्टोरियो स्पेसिफिक। एंजाइम की एक्टिविटी जो होता है टिपिकली वो दिखाता है एब्सोलूट रिलेटिव ग्रुप। वो एक्टिविटी किस पर दिखाता है? एब्सोलूट रिलेटिव ग्रुप एंड स्टोरियो स्पेशलिटी पर दिखाता है। ये जब क्लासिफिकेशन आपका दिया जाएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। सम एंजाइम्स आर रेगुलेटरी इन फंक्शन, कुछ एंजाइम जो होता है रेगुलेट करता है फंक्शंस को। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज मिनिमाइज द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम की प्राइमरी फंक्शन क्या है? वो क्या करता है? वो एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज करता है, कम करता है, बहुत कम करता है एक्टिवेशन एक्टिवेट होने। द एंजाइम रिमेन अनअल्टर्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन और दे कैन बी रिकंज्यूम्ड। जैसे कि मैंने बताया अभी कि एंजाइम जो होता है रिएक्शन में हिस्सा लेता है सब्सट्रैक्ट को प्रोडक्ट चेंज करने में, लेकिन उस वो क्या होता है बिल्कुल अल्टर नहीं होता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से प्रोडक्ट चेंज होने के बाद से फिर से वापस अपने सेम वैसे ही अवस्था में हो जाता है दूसरे सब्सट्रैक्ट से जोड़ करके उसका रिएक्शन करने के लिए। एनी एंजाइम में पोजेस एंड एलोस्टेरिक एलोस्ट्रिक एलोस्टेरिक site beside an active site to which cofactor are regulatory interact। इसको आपको मैं आगे बताऊंगा एलोस्टेरिक साइट क्या होता है और एक्टिव साइट क्या होता है और कोफैक्टर या रेगुलेटरी इंट्रैक्ट क्या होता है। तो एंजाइम के पॉजेस है, एंजाइम की प्रॉपर्टीज है। एंजाइम्स आर सॉल्युबल इन द वाटर एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी एंजाइम सॉल्युबल हो जाता है किसमें? वाटर और NaCl में। अगला हम देखते हैं तो ये तो इसके पहले जो आपको बताया इस वो क्या था? जनरल प्रॉपर्टी यानी एंजाइम का ओवरऑल प्रॉपर्टी था। अभी देखते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम देखते हैं। तो एंजाइम का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? एंजाइम वर्क एज बायोकैटलिस्ट। एंजाइम फिजिकली बायोकैटलिस्ट होता है एंड कोलाइडल नेचर होता है। एंजाइम जो होता है कोलाइडल नेचर होता है। एंजाइम क्या करता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है एंजाइम। मॉलिक्यूलर वेट, ये सब अभी डिस्कस करेंगे। एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? एज सॉल्युबिलिटी एंड डीनेचरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट नेचर। एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम जो होता है बायोकैटलिस्ट नेचर होता है। अब एंजाइम की एक्टिविटी देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन स्ट्रॉन्गली डिपेंड अपॉन द फैक्टर लाइक टेम्परेचर, pH एंड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रैक्ट। एंजाइम show the highest activity, optimum temperature 37 degree Celsius and pH 7.2 and a low concentration of enzyme and substrate will be slow down the enzymatic reaction। ये सारी चीज़ें आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस में मैं बताऊंगा चीज़ें, या फैक्टर अफेक्टिंग में बताऊंगा कि टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है, एंजाइम पर कैसे फ़र्क पड़ता है, उसके सब्सट्रैक्ट पर क्या फ़र्क पड़ता है, एंजाइम के कंसंट्रेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है। बस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए थोड़ा। वन द अदर हैंड
A higher concentration of enzyme will result in the faster enzymatic activity as more substrate will be interact with the enzyme's activity site bring to product information. यानी हायर कंसंट्रेशन, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन हायर होती है तो प्रोडक्टिविटी आपको ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो ज़्यादा सब्सट्रैक्ट से जुड़ेगा और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा. वंस द रिएक्शन वेलोसिटी रीच द मैक्सिमम वैल्यू there would not be any charge in the enzymatic reaction after the addition of enzyme substrate. अब एंजाइम जो होता है कोलाइडल नेचर होता है, उसके बारे में हम देखते हैं. ये तो अभी बायोकैटलिस्ट नेचर था, उसके बारे में देखा था. एंजाइम कोलाइडल नेचर में होता है. तो कोलाइडल नेचर क्या होता है? एंजाइम बिहेव एज ए कोलाइड due to the large size or high molecular weight. As the result, the enzyme have a little or no tendency to dilate or across the permeable membrane. तो एंजाइम कोलाइडल नेचर का होता है, कोलाइडल फॉर्म में होता है, और इसके साइज जो होते हैं बड़ी होती है और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है. एंजाइम प्रेसिपिटेशन देखते हैं. तो एसिडिक एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन कैन कॉज द एंजाइम प्रेसिपिटेशन एट द एंजाइम आर द एम्फोटेरिक प्रोसेस एंजाइम amino and carboxylic acid group towards the end of chain. Ethanol and the high concentration of inorganic salt like ammonium sulfate facilitate enzyme precipitate. तो एंजाइम जो होता है प्रेसिपिटेट नेचर का होता है, क्योंकि ए एम्फोटेरिक स्टेज शो करता है. क्योंकि प्रोटीन में आप लोग पढ़े ही थे, मैंने आपको पढ़ाया ही था. प्रोटीन जो होता है इसका एक अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जिसके वजह से एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर होते हैं और खुद को न्यूट्रलाइज करते हैं. तो इथेनॉल या हाई कंसंट्रेशन ऑफ इन ऑर्गेनिक साल्ट लाइक अमोनियम सल्फेट में क्या होता है? फैसिलिटेट होता है एंजाइम प्रेसिपिटेशन. मॉलिक्यूलर वेट के बारे में देखते हैं. तो एंजाइम आर द लार्ज प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल्स पोजेसिंग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ वेरियस अमीनो एसिड सीक्वेंस. नियरली 200 to 300 polypeptide bonds hold the amino acid together. Therefore the enzyme have the higher molecular weight. यानी कि एंजाइम के पास, एंजाइम जो होता है हायर मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स होता है, हायर बायोमॉलिक्यूल्स होता है, क्योंकि ये लार्ज प्रोटीन का बना होता है. अब लार्ज प्रोटीन में क्या होता है? लगभग 200 से 300 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एंजाइम में होते हैं, होल्ड करते हैं, अमीनो एसिड को होल्ड करता है, जिसके वजह से इनका वेट वो बड़ा हो जाता है. एंजाइम की सॉल्युबिलिटी देखते हैं. तो एंजाइम आर सॉल्युबल इन द वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, डाइल्यूटेड ग्लिसरॉल एंड अल्कोहल. एंजाइम डीनेचुरेशन देखते हैं. तो हाई हीट above 40 degrees Celsius and alteration in the pH too low and too high. Heavy metals and high salt concentration denature the enzyme by the breaking the intra and intermolecular non-covalent bonds. It distorts the enzyme shape and active site and finally result in the loss of the enzyme activity. तो एंजाइम डीनेचर होता है. अलग अलग बुक में अलग अलग आपका टेम्परेचर लेवल दिखेगा, अलग अलग पीएच लेवल दिखेगा, थोड़ा सा डिफर करेगा, बहुत ज़्यादा डिफर नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा डिफर होगा हल्का सा. जैसे हाई हीट आपका जो दिखा रहा है उसमें मैक्सिमम कई बुकों में 55 तक दिखाया है. तो
ये जब आप लोग को मैं डिस्कस करूँगा एंजाइम फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम का, तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि डीनेचुरेशन मतलब उनकी एंजाइम की एक्टिविटी की क्षय हो जाती है, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी नहीं हो पाती है। किस कंडीशन में? अगर उसको हाई हीट दे दे, या उसके पीएच जो फेवरेबल कंडीशन हो उसको, या तो बहुत अधिक आपको पीएच कर दे या बहुत लो पीएच कर दे, उस कंडीशन में भी डीनेचुरेशन हो जाता है। या हैवी मेटल्स आते हैं, वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं। या हाई साल्ट कंसंट्रेशन होता है जो एंजाइम को डीनेचर्स बना देता है, जिसके वजह से वो इंट्रा या इंटर मॉलिक्यूल्स नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का आपका ब्रेकिंग होता है। इसके वजह से क्या मतलब उनका एक्टिव साइट जो होता है, जिसके वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जोड़ करके प्रोडक्ट को सब्सट्रैक्ट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे थे, उस कंडीशन में ना होने की वजह से उनका डीनेचर मतलब उनका जो एक्टिविटी होती है वो लॉस हो जाती है। आगे हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है एंजाइम का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कैटालाइसिस का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है, स्पेसिसिटी होती है एंजाइम की, उसके बाद से सेंसिटिविटी होती है, रिवर्सिबिलिटी होती है। तो एंजाइम वर्क एज ए कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस कैसा होता क्या होता है? तो एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि ये जीवों में जो वर्किंग होता है, यानी बायो में जो वर्किंग होता है, लिविंग थिंग्स में जो वर्किंग होता है, उसी को बायोलॉजिकल कहते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, विच पोसेस हाई कैटलिस्टिक efficiency. They can transform about 100 to 1000 subtract per second। और एंजाइम जो कैटालाइसिस का काम करते हैं, यानी कि उत्प्रेरक का काम करता है, अगर हिंदी में समझे तो इसको उत्प्रेरक बोलते हैं। तो एंजाइम जो होता है लगभग आपका 1 सेकंड में 100 से 10,000 सब्सट्रैक्ट को प्रिपेयर कर देता है। द रिएक्शन catalyzed by the enzyme so 103 to 108 times faster the reaction rate of the comparison of the uncatalyzed reaction। जैसे कि अगर कोई रिएक्शन नॉर्मली चल रहा है तो उसको 103 से लेकर के 108 टाइम्स उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है एंजाइम। एंजाइम्स डू नॉट कॉज alteration in the equilibrium constant and increase the conversion rate। The number of subtract molecules give the product is called turnover number। यानी कि जितना आपका एंजाइम होगा उतने ज़्यादा सब्सट्रैक्ट से जुड़ेगा, उतने प्रोडक्टिविटी तैयार करेगा। तो एंजाइम जो होता है वो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है उसको बिल्कुल अल्टर नहीं करता है। एंजाइम रेगुलेशन देखते हैं तो एंजाइम फंक्शंस कैन बी रेगुलेटेड एलोस्टेरिकली। एंजाइम का फंक्शन जो होता है एलोस्टेरिकली होता है। इसको आगे मैं बताऊंगा, बार बार बता रहा हूँ आपको। अदर देन द एंजाइम्स एक्टिव साइट देयर इज अनदर साइट टू विच रेगुलेट मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। एंजाइम जो होता है अपने एक्टिव साइट पर ही सब्सट्रैक्ट को बाइंड करता है, इसके अलावा और किसी पर बाइंड नहीं करता है। द रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स में द फंक्शन ऑफ द एक्टिवेटर इनहिबिटर। जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स जो होता है में फंक्शन एज ए एक्टिवेटर इनहिबिटर्स, इट बाइंड टू रीजन्स कॉल्स एलोस्टेरिक साइट।
एंजाइम दैट नीड्स मेटाबॉलिक रेगुलेटरी आर कॉल्ड द एलोस्टेरिक एंजाइम, यानी कि जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स में फंक्शन, जैसे कुछ एंजाइम जो होते हैं एज ए एक्टिवेटर या इनहिबिटर, एंजाइम पर जो एक्टिवेटर इनहिबिटर का काम करता है, यानी एंजाइम जिसकी वजह से एक्टिवेट होता है या इनहिबिट होता है, उस वो जो होता है एलोस्टेरिक साइट होता है, जिसके वजह से एंजाइम अपना एक्शन शो कर पाता है, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन शो कर पाता है या ब्लॉक कर पाता है, उसी को एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स बाइंड द एंजाइम्स एक्टिव site can cause slight alteration in the shape and restrict substrate binding. On the other hand, the allosteric activation increase the function or efficiency of enzyme. तो एलोस्टेरिक साइट जो होता है उससे अगर एक्टिवेटर जुड़ता है तो एंजाइम अपना फंक्शंस शो करता है पॉजिटिव वे में। अगर उसमें इनहिबिटर जुड़ता है तो उसके एक्टिव साइट चेंज हो जाते हैं इनहिबिटर जुड़ने से, और एंजाइम अपने फंक्शंस को नहीं कर पाता है। एंजाइम स्पेसिसिटी देखते हैं। एंजाइम आर द रिएक्शन स्पेसिफिक पोजिशनिंग फॉर द डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्पेसिसिटी, यानी एंजाइम का जो रिएक्शन होता है वो स्पेसिसिटी होता है, यानी कि स्पेशल प्रोडक्ट के लिए स्पेशल एंजाइम्स आपके होते हैं। एब्सोल्यूट specificity, an enzyme catalyzed to only one reaction or it bind to single substrate for the instant instance maltose act as maltose। तो आपको बता दें स्पेशल एंजाइम स्पेशल सब्सट्रैक्ट के लिए बना होता है, जैसे माल्टोस को चेंज करने के लिए माल्टेज एंजाइम हुआ होता है। ग्रुप स्पेसिफिसिटी क्या होता है? द एंजाइम एक्ट अपॉन द सब्सट्रैक्ट दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल पेप्सिन हाइड्रोलाइसिस द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ द फेनिल एनालाइन। तो एंजाइम एक्ट एज द सब्सट्रैक्ट दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप पर एक्ट करता है, जैसे कि आपका जब पेप्सिन का हाइड्रोलाइसिस होता है वो तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो कहता है फेनिल एनालाइन आपका होता है। रिलेटिव आर बॉन्ड स्पेसिसिटी, enzymes act as the reactant molecules having similar bond and structural conformation. For example, amylase hydrolase alpha hydrolysis hydrolyze alpha 1 for glycosidic linkage in the starch and glycogen. It has the low specificity। रिलेटिव या बॉन्ड स्पेसिसिटी क्या होता है? तो एंजाइम एक्ट ऑन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमिलर बॉन्ड एंड स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन, मतलब स्पेशल प्रोडक्ट के लिए स्पेशल आपका एंजाइम्स होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं वो देख लीजिए। स्टेरियोकेमिकल स्पेसिसिटी क्या होता है? तो एंजाइम फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद द पार्टिकुलर स्टेरिक ऑप्टिकल आइसोमर्स। यल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एक्ट एज स्पेशली ऑन द एल अमीनो एसिड, इट हैज हाई स्पेसिसिटी, यानी कि स्टेरियोकेमिकल इनके पास आइसोमर की कैपेसिटी होती है। तो आइसोमर एंजाइम्स जो होता है आइसोमर एंजाइम जो होते हैं उनको सब्सट्रेट को आइसोमर में चेंज कर देते हैं। एंजाइम सेंसिटिविटी, एंजाइम किससे
सेंसिटिव है वो देखते हैं। तो एंजाइम वर्क बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, एंजाइम एक्टिविटी मोस्ट सिग्निफिकेंट एज ऑप्टिमम पीएच up to 7.2 but generally range between 6 to 9 and 37 degrees Celsius is the optimum temperature required for the enzyme। तो एंजाइम सेंसिटिव होता है, आपको पता ही है, इसके पहले फिजिकल में भी मैंने बताया था। उसकी एक्टिविटी जो होते हैं टेम्परेचर और पीएच पर अल्टर होती है, या इस फेवरेबल कंडीशन में मैक्सिमम ऑप्टिमम रिजल्ट शो करता है एंजाइम। तो 7.2 आपका जो है वो पीएच है, जनरली 6 to 9 होता है। और उसके बाद से हम देखते हैं इनका टेम्परेचर, तो 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं, जिसमें ऑप्टिमम रिजल्ट शो करते हैं। टेम्परेचर अबाउट 37.5 डिग्री सेल्सियस, एनी अल्ट्रेशन इन द पीएच में नॉट ओनली द रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंजाइम बट आल्सो रिजल्ट इन द एंजाइम डीनेचुरेशन एट द result denaturation the intra and inter molecular bond between the enzymes and molecules break। तो डीनेचुरेशन क्या होता है, एंजाइम के जो इंट्रा या इंटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसी वजह से डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन किस कंडीशन में होगा, जो उनका फेवरेबल जो टेम्परेचर है और फेवरेबल पीएच है, अगर उसको हम अल्टर करते जाएं, उसको बढ़ाते घटाते जाएं, तो उसमें क्या, उस कंडीशन में जो होता है वो रिजल्ट अपना शो नहीं कर पाता है, क्योंकि बॉन्डिंग नहीं पड़ केमिकली बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। एंजाइम रिवर्सिबिलिटी, एंजाइम की रिवर्सिबिलिटी देखते हैं। तो एंजाइम्स आर द बायोमोलिक्यूल दैट कैटलाइज्ड वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्लूडिंग कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। इट्स सिंपल वर्ड्स, एंजाइम कैन synthesize, build up new molecules, build up new molecules product and decomposed are the break down the different product। तो एंजाइम आपका रिवर्सिबिलिटीज शो करता है। कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन आपका उसमें इंक्लूड होता है। हाँ, the majority of the enzymatic reaction are reversible, which means enzyme can catalyze biomolecules reaction in the forward or reverse direction। Digestive enzyme catalyzed reaction is the one way। तो एंजाइम जो वर्क करता है तो मैक्सिमम आपका रिवर्सिबल होता है, मतलब फॉरवर्डेड और डाउन साइड दोनों साइड में होता है रिएक्शन। और कुछ एंजाइम जो होते हैं आपके वन साइडेड करते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो कैटलाइज्ड रिएक्शन इन द वन वे, वो आपका वो एक पाथ दिखाता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं। तो लेक्चर से जुड़ने के लिए थैंक यू। ये दी फॉर्म सेकेंड ईयर का आपका यूनिट चैप्टर था एंजाइम्स। तो अभी हमने डेफिनेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। आगे हम इसके क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और छोटे छोटे जो टॉपिक बचते हैं वो भी कवर करेंगे। तो लेक्चर से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। और लेक्चर से जुड़े रहने के बाद अगर आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं करते हैं तो फिर वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। लेक्चर से जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल सुपर फार्मेसी के थ्रू। अगला लेक्चर जल्द ही आपको देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।